آج ہم جس یونیورسٹی فیصلاباد کے ڈپارٹمنٹ میس کمیونیکیشن محمد علی بلاک میں حاضر ہوں گے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی خدمت میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے سوال رکھیں گے. آج کا پروگرام انتہائی منفرد ہونے والا ہے. میرے اوپر الزام لگاتے ہو؟ توہین تو تمہارے امام نے کی ہے اعلیٰ حضرت نے, اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی. عبد القادر جانے اور خدا جانے. اور تانوں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لوے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں نے چھاپنے والے, تانوں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. انجینئر صاحب سے کوشچن میرا, اگر امام بخاری نے یہ بات لکھی ہو کہ بکری کا دودھ 2 بندے پی لیں وہ ماں جائے بھائی ہو جائیں گے, آپ اور میں ہماری عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ہم اس بات کو ایگری کر لیں. وہ اللہ کے بندے یہ بات امام بخاری نے لکھی ہے, میں حوالہ دینے کو تیار ہوں. امام بخاری کی کتاب میں نقل ہے بات, تو امام بخاری کی اس بات سے رد کر رہا ہے کہ امام بخاری یہ بات کر ہی نہیں سکتے, تو پھر بخاری کو کیوں مانتا ہے؟ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں مگر لڑکی اور لڑکی گھر والے نہ مانے تو وہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں؟ کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے. جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے سٹیپ لیتے ہیں. حضرت جی زنا پورے کے نکاح ہم نے زنا کو آسان کر دیا, نکاح کو مشکل کر دیا. ہمیں تو پتہ نہیں ہے لڑکی نے شادی کر لی ہے نکاح. جس لڑکی سے زنا ہو رہا ہے انہیں گھر والوں کو پتہ ہے کہ میری بیٹی سے زنا ہو رہا ہے. جس لڑکی سے زنا ہو رہا ہے انہیں گھر والوں کو پتہ ہے کہ میری بیٹی سے زنا ہو رہا ہے. آج کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں, چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. کمینے تو کمینہ ہی نکلے آئے, واقعی کمینے ہی نکلے ہیں, اپنے نا دا کلمہ پڑھائی کمینے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بات انجینئر صاحب کسی سنی کسی دیوبندی عالم دین کی کتاب میں ثابت کر دیں کہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے, میں اپنا سر قلم کر دوں گا. میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا, جب وہ مر گیا منکر نکیر آئے, انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربوں کا, کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. میں گوشت باغ کا دھوبی ہوں جی, میری بخشش ہو جائے گی. گوشت باغ قبر میں آئیں گے. کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے. عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف دعوت دے گی یا بلائے گی, اور وہ جماعت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. بس یہ بات یہیں پہ ختم رہنے دو. اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے, تو بابے تے شاہی کوئی نہیں, لے لو بابے اپنے. کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کو بولو کہ وہ قبروں سے اٹھ کر بھی میرا مقابلہ کریں, تو نہیں کر پائیں گے. مردے زندہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اگر یہ الزام لگاتا ہے تو شہید قرآن میں زندہ ہے, اٹھا کسی شہید کو. اگر ہے طاقت اٹھا ان کو. ہم کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کسی ایک سے تو آپ مناظرہ کر کے دکھا دیں, پھر شاید ہم بھی آپ کو مان جائیں کہ آپ مرزا انجینئر ہیں, حق کی بات کرتے ہیں. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاتح. دنیا بھر کے تمام ممالک, شہر و دیہات, گلیاں بازار, کوچہ و مینار, الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے, ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین کرام, ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ دین کا پیغام سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو دین کا ایکچول پیغام ہے وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں. ہم اہل سنت مکتبہ فکر کی علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اہل حدیث
मकबे फिक्र के उलमा की खिदमत में हाजिर हुए। अहले तशय्युअ मकबे फिक्र की उलमा किराम की खिदमत में हाजिर हुए। अलगर्ज पाकिस्तान में रिनाउंड जितने भी मसालिक हैं, हम उन तमाम मसालिक के सैयद उलमा किराम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके मसाइल उन तक रखे। मगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कोई मसलक नहीं, कोई फिरका नहीं, उनका मसलक है तो इल्मी किताबी। वो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, किसी बाबे की बात नहीं करते। मगर आज जिस जामिया से बिजाते खुद में डॉक्टर अहमद नसीर फारिग तहसील हुआ, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, आज उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की खिदमत में हाजिर होऊंगा और जानूंगा कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से क्या राय रखते हैं। तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डिपार्टमेंट मैस कम्युनिकेशन मोहम्मद अली ब्लॉक में हाजिर होंगे और तमाम असातिज़ा कराम से भी मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से आपकी क्या राय है। और जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी खिदमत में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से सवाल रखेंगे। आज का प्रोग्राम इंतहाई मुनफरिद होने वाला है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैंने आपको बताया, मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं नहीं को बाबा छड़ना, जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है उसने नहीं बचना। हाँ, और ये जो तुम लोग क्वेश्चन करते हो ना कि हम ये करेंगे, 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवाई, हम मुआव ले जाएंगे जी, इंजीनियर साहब मुल्क छोड़ दें, कहते हैं मशवरे भी दे दीजिए ना भाई। जब तक तुम्हारे सारे के सारे मौलवी अपनी नेचुरल डेथ के साथ अपनी कब्रों में नहीं चले जाते ना, और मैं उनकी कब्रों पर विक्ट्री का निशान नहीं बना लेता। हाँ जी, इंजीनियर साहब अपने कमरे से बाहर, और इंजीनियर तो घरे च वड़ गया है, कमरे तो नहीं बाहर निकलता। कोई कमरा बचा जाए, कोई मसीती बची जाए जितने इंजीनियर ना पहुंच गया होए, इनको तो ख्वाब में भी इंजीनियर नजर आता है। नाज़रीन इकराम, इल्म के 3 दर्जे हैं। पहला तकब्बुर को जन्म देता है, दूसरा इंसान में आजिज़ी पैदा करता है, और इल्म का तीसरा दर्जा यह है कि इंसान कुछ नहीं जानता। मगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब सब जानते हैं, वो सब जानते हैं क्योंकि वो इल्म रखते हैं और इल्म फैलाते हैं, इल्म बांटते हैं। नाज़रीन इकराम, शैतान यानी इब्लीस वो आलिम था, आबिद था, आरिफ था, यानी हर आइन उसमें था, फकत उसमें एक आइन की कमी थी, वो आशिक नहीं था। अगर आशिक होता तो शायद बारगाहे उलूहियत से रद्द ना किया जाता। इश्क ही वो ऐसा जज्बा है कि इंसान को रब तक पहुंचा देता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की खिदमत में जब हमने सवाल रखा इश्क मुस्तफ़ा के हवाले से, तो उन्होंने यही इरशाद फरमाया कि हम इश्क मुस्तफ़ा के हामी हैं। इश्क है तो फ़कत यही है कि इश्क मुस्तफ़ा। इश्क ये नहीं है कि आप मुर्शिद की खातिर नाचना शुरू कर दो, यानी उनका इशारा बाबे बुल्ले शाह की तरफ था। मेरे साथ जीसी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के इस वक्त तालिब इल्म मौजूद हैं और ये अपनी अपनी आरा रखते हैं। इनसे जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से ये क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और आप तक क्या अपने जज्बात पहुंचाते हैं, चूंकि मैं भी इसी जामिया से फारिग तहसील हूँ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आप सबके? खैरियत से, तबीयत ठीक है? आपका नाम क्या है? हसन भाई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं कि बाबे से कोई शय नहीं, बाबे कुछ भी नहीं है, मांगना है तो रब से मांगो। नबियों ने रब से मांगा, नबियों के पास क्या वसीला था? क्वेश्चन इज दैट कि नबियों के पास कोई वसीला ना था। अगर कोई वसीला था तो क्या था? वो डायरेक्ट रब से मांगते थे। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के इस मौक़िफ़ को कहां तक देखते हैं? और आप इस वक्त ये भी जानते हैं कि दौरे हाजिर के इस वक्त रीनाउंड पर्सनैलिटी साबित हो रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। हर संडे को हर तालिब इल्म जो उनसे मोहब्बत करता है और हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला उनसे जाकर मुलाकात कर सकता है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक आपका सवाल है, मैं इस बात से बिल्कुल जो है मुत्फिक हूँ। कुछ कहते हैं कि बाबे कोई शय नहीं है, अल्लाह की ज़ात ही जो है बेशक वो सब कुछ है। जो मांगना है आप रब से मांगे,
जिस तरह दरबारों पे जाके लोग सजदा करते हैं, शिरक करते हैं, वो इस चीज़ के खिलाफ हैं और ये बिल्कुल ठीक है। और अगर उनकी किसी को बात ये चुभती है तो यही होता है कि जो बड़े हमारे मुफ्ती हैं, उलमा इकराम हैं, उनका जो रोज़गार लगा हुआ है, दाम दरूद वाला सिस्टम है, वो बंद हो जाएगा। उनका यही मौक़िफ़ है। तो मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, उनकी बात से मैं जो है एग्री करता हूँ। और जो उनके खिलाफ हैं वो उनको मुनाज़रे के लिए कहते हैं, तो जो उसके साथ बैठना चाहता है उसको अपनी बात वो क्लियर कर सकता है। अगर यहाँ इसी आज की टेबल पे, आज की मेज पे इंजीनियर साहब के खिलाफ कोई बात करना चाहता है और वो आपको बराह रास्त मुनाजरे का चैलेंज दे कि भाई मैं इंजीनियर के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मेरे पास दलाइल है कि मैं इंजीनियर का मुखालिफ हूँ, तो क्या आप उससे बहस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बहस कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई है जो इंजीनियर साहब के खिलाफ बात करना चाहता है या जो इख्तिलाफ रखते हैं इंजीनियर साहब से? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम शेर। आलम शेर साहब, भाई ने बताया कि भाई रबी का वसीला भाई रबी से मांग लें, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बेशक भाई की बात मैं एग्री करता हूँ, रबी का वसीला है, लेकिन जो मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि मतलब कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाक की गुस्ताखी करता है, ये वो कहता है अगर मैं नबियों के दौर में होता, मतलब कि सहाबा के दौर में होता तो मैं भी जंगे वगैरह लड़ता। उसकी इतनी औकात है कि वो सहाबा के दौर में होता, अगर इतना नेक पाक होता तो वो सहाबा के दौर में होता, इस वक्त क्यों होता? लेकिन वो इल्म फैला रहे हैं, वो नेक है तो इल्म फैला रहे हैं। इल्म ऐसे नहीं ये नेकोकारों का काम है ना भाई, इल्म इल्म फैलाना। ऐसे नहीं फैलाया जाता, सहाबा की गुस्ताखी करके इल्म नहीं फैलाया जाता, किसी अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी करके इल्म नहीं फैलाया जाता। इल्म फैलाने वाले और भी बहुत लोग हैं, उससे अच्छे अच्छे लोग पाए जाते हैं। आपको लगता है कि सहाबा की गुस्ताखी हो रही है? हाँ जी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाक की उसने गुस्ताखी की है। लेकिन वो तो ये बताते हैं कि भाई हजरत अमीर मुआविया का जब हजरत अली मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से तनाज़ा छिड़ गया था, या तनाज़ा था, उस हवाले से वो बात करते हैं और 2812 के अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, इस हवाले से क्या कहेंगे? इसी बात की वजह से मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद कराची से 17 घंटे की ड्राइव करके वहाँ जेलम पहुंचे और वो जो मिर्जा इंजीनियर है वो 1 सेकंड के लिए भी उनसे नहीं मिला। ये क्या बात है? तो वक्त नहीं था ना भाई इधर मिलने का? क्यों, वक्त पहले मुकर्रर तो संडे को हुआ, सबसे मिलते हैं तो वक्त मुकर्रर हुआ, उसने बुलाया था, मुनाजरे का टाइम हुआ, वो नहीं आया। फिर उसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पहुंचे, वक्त मुकर्रर, सब कुछ लेटर लिखा, उसके अंदर जो जहाँ पे वो बैठते हैं उधर भेजा, वो फिर भी नहीं मिला। यानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हक में है या आप तारिक मसूद साहब के हक में? मैं दोनों मुनाजरे के लिए पहुंचे, बरेलवी भी देवबंदी, लेकिन उन्होंने किसी से मुनाजरा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। आपका भाईजान क्या नाम है? अपना मेरा नाम हाफिज फजल कादरी है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपना एक स्टांस रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, बबांगे दोहल बात करते हैं और डरते नहीं, घबराते नहीं है, क्या कहेंगे? यार बिल्कुल अच्छी बात कर रहा है वो, लेकिन यहाँ पे इख्तलाफ मैं करूंगा इस बात से, जो वसीले की बात आपने की ना, ये वसीले के जरिए मांगो या वसीले के जरिए ना मांगो, कुरान कहता है कि वसीले के जरिए मांगो। इसकी बड़ी दलील मैं ये देता हूँ कि अगर वसीला नहीं है, वो कहता है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, बिल्कुल मांग लेते हैं। अल्लाह पाक अपनी तौहीद का ऐलान कुरान में कर रहा है मोहम्मद पाक के वसीले से। हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह पाक कह सकते हैं हुवल्लाहु अहद, मानो अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमाओ अल्लाह एक है। नबी पाक का वसीला क्यों इस्तेमाल किया? वाह वाह। इट्स मीन दैट अगर अल्लाह पाक की बारगाह में जाना है तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे ना मुसलमान नहीं हो जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा, वसीला लेना पड़ेगा, फिर मुसलमान होगे। तो वसीला लेके जाओ। हम ये बात कतई नहीं करते हैं कि औलिया अल्लाह की बारगाह में जाओ, वहां से मांगो, ये मिलेगा। शिर्क के मुखालिफ है, अगर किसी और से मांगे तो शिर्क होगा, लेकिन हाँ अल्लाह जिसे अता करे हम उसके जरिए मांग सकते हैं। बिल्कुल, अब नबी पाक के वसीले से हम मांग सकते हैं। बिल्कुल सही, ये बात है, बिल्कुल सही। वसीले के जरिए मांगते हैं, वो गलत पॉइंट ले रहे हैं। और दूसरी मामला में जिस तरह उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, किताबों में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह और दीगर अशरफ अली। अच्छा, ये चिश्ती रसूलुल्लाह, आप माशाल्लाह तालिब इल्म भी हैं, नौजवान भी हैं, ये तो जरा क्लियर करें, क्योंकि लोग इस वक्त धड़ाधड़ उनको फॉलो कर रहे हैं और वो यही बताते हैं कि भाई आपके बुजुर्ग जो हैं, आपके बाबे जो हैं, वो अपना कलमा पढ़वाते रहे भाई, वो नबी का कलमा नहीं पढ़वाते रहे, अपना कलमा पढ़ाते रहे। भाईजान ये डायरेक्टली इल्जाम लगा रहा है दो चीजों पे, दो हस्तियों पे आ रहा है, पीर मेरे सरकार पे, उनकी किताब का हवाला देता है, और इल्जाम लगाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी पे कि उन्होंने कलमा पढ़ाया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इंजीनियर साहब को, हनीफ कुरैशी साहब ने भी चैलेंज किया था कि ये बात इंजीनियर साहब किसी सुन्नी, किसी देवबंदी आलिम दीन की किताब में साबित कर दे कि चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा कलमा है, मैं अपना सर कलम कर दूंगा। वो किताबों में दिखाते हैं भाई, ओ भाई किसी किताब में दिखाओ ये हमारा कलमा है। नहीं, कलमा तो नहीं है, लेकिन वो आज कहते नहीं किताबें बदल गई हैं। हाँ, चंद साल पहले तक मुनाजरों में बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ते हो चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे। हाँ, जब वो कहता है कि जी वो देखें ख्वाजा ने एंड पे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नबी के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं। कमीने तू कमीने ही निकले आए, वाकई कमीने ही निकले हैं, अपने ना दा कलमा पढ़ाई कमीने।
یعنی پیر معین الدین چشتی صاحب نے یہ اپنے مریدین کو یہ کہا کہ بھائی پڑھو, وہ بھائی جان یہ پڑھو گے تو پھر مسلمان ہوگے. اسی الزام کی تلافی کے لیے حنیف قریشی صاحب وہاں پہ پہنچے. اب وہ کہتا جی اتوار والے دن کوئی شخص, کوئی بندہ, کوئی پی ایم سے لے کر عام آدمی تک میری اکیڈمی میں آ جائے, وہ آ سکتا ہے, میرے ساتھ بات کر سکتا ہے, مناظرہ کر سکتا ہے. اس سے کچھ دن قبل ایک موصوف ہے, میں نام نہیں لوں گا, ایک عالم دین تھے, وہاں پہ گئے, انہوں نے کویشچن آنسر کیے. جب جو بندہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے نا, اب میں جاتا ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میرے پاس کم علم ہے, میں جاتا ہوں نا, میں قابو میں آ جاتا ہوں, وہ کرتا ہے نفسیاتی باتیں, وہ نفسیاتی باتیں کر کے قابو کر لیتا ہے بندے کو, ٹھیک ہے. اب جو بندہ ہوتا ہے نا عالم دین, پڑھا لکھا, فاضل العلم, جو درس نظامی سے فارغ ہوا ہوتا ہے, اس سے وہ بحث ہی نہیں کر سکتا ہے حضرت, بغیر اعراب بات کے قرآن پڑھ کے دکھائے, وہ بات ہی نہیں کر سکتا نا. وہ حدیثوں کے حوالے دیتا ہے فلاں یہ اب میں انگلش کی کتاب پڑھتا ہوں, میں 307 نمبر صفحہ نکالو, یہ کر لو, وہ کر لو. اور اللہ کے بندے ٹھیک ہے, یہ تو نے یاد کیا, تیرا حافظ ہے, تو حدیث بتاتا ہے, فلاں بتاتا ہے, اس پہ عمل کر, مناظرہ کر آ کے نا, مناظرہ. اب حنیف قریشی صاحب اپنے بڑے بھیجو, وہ تو کہتے ہیں کہ اپنا بڑا بھیجو, میں چھوٹے سے مناظرہ نہیں کروں گا, اپنا بڑا بھیجو پھر میں بات کروں گا نا. مناظرہ کیوں نہیں کرتے تاکہ دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہوئے. میں تیار ہاں مناظرہ بندہ لے کے آؤ نا میری ٹکر دا, میں ہن بچے نال تے نہیں مناظرہ کرنا. تسی ہن اگر کہو کہ جی آسٹریلیا دی ٹیم جیڑی ہے وہ تہاڈی گڑی شاہو دی ٹیم نال کھیڈے کرکٹ میچ, انج تے نہیں ہوئے گا نا سرکار. ٹکر دے لوگ لے کے آؤ نا, ہاں ٹکر کے لوگ لے کے آئے. تسی خود کلیم کیتا ہے کہ سرکار انجینئر نے فرقہ بنایا, میں تو نہیں مان رہا. چلو تہاڈی گل تو ہو گئے ٹرنے کہ اس فرقے دا بانی پھر تہاڈے بکول تے میں ہویا نا, تے کڈو نا اپنے بزرگاں نوں حوالے آؤ نا. پہلے تو ویسے میری ڈیمانڈ ہے کہ جڑے وڈے بابے جنہاں دے ناماں تے تسی بنائے نا فرقے, وہ زندہ نے قبریں, انہاں نوں باہر کڈو پہلے تے. چلو وہ نہیں نکلدے, انہاں دے جڑے چھوٹے اس ٹائم موجود نے لیاؤ, بریلویاں دے سب تو وڈے جے مفتی منیر الرحمان لیاؤ انہاں نوں, میں بیٹھنے سے تیار ہاں. میں قدمے وچ بیٹھا گا, کرسی تے بٹھاواں گا انہاں نوں. تنگی عثمانی صاحب آ جان دیو بندیاں تے, اے میرا شوق نہیں, تہاڈے شوق تے میں کہہ رہا, منوں کوئی شوق نہیں. عوام خود فیصلہ کر رہی ہے کہ یار انہوں نے وڈیاں کول بھی جو علم ہے لوگوں کو پتہ لگ گیا, وہ یار جڑے چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ دا دفاع کرتے رہے نے, انہوں دا وڈا ہونا اس تو ہی پتہ لگ جائے گا. یا ادھر تے بول نہیں سکتے دو بول یہ خلاف, انہوں دا وڈا ہونا کیا ہے. لیاؤ بھابی لیاؤ, ساجد میر صاحب نوں والو آؤ, میں کرسی تے بٹھاواں گا, تھلے پاواں گا. لیکن تسی کہو کہ چھوٹے, یہ بڑی بڑی شرارت ہے انہاں دی. او دی وجہ یہ ہے کہ یہ تے صرف 5 لاکھ مولوی تے فضل الرحمان صاحب دے ہاتھ دے بیعت نے. میں 5 لاکھ بندیاں نال کر سکنا, میں ایک نال گل کراں گا وہ کہن گے تے چھوٹا سی, وہ وڈا وڈا عالم تے وہ ہے, وہ نال کرو, وہ نال کراں گا وہ کہیں گے اس نال کرو, یہ تے ختم ہی نہیں ہونے, یہ اتنے زیادہ نے. تے ایدا آخری حل یہ ہے کہ وڈا لیاؤ, اور ویسے بھی یہ نیچرل ہے کہ وڈے دا مقابلہ وڈے نال ہوئے گا. یار بڑے کی بات کر لی. وہ یہ بھی کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ خطا کلامی معذرت چاہ رہا ہوں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں آپ سے مناظرہ کر گیا تو آپ ہار بھی گئے, آپ پھر کہیں گے کہ بھائی ہم بڑے نہیں تھے, ہمارا بڑا تو بھی باقی ہے, تو اس لیے اپنا بڑا ہی بھیجو نا آپ. یار مثال سیدھی سی دیتا ہوں, پاکستان کی ٹیم ہے, میچ کہتے ہیں, کوالیفائی راؤنڈ ہوتا ہے, ہم پہلے سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہیں, میچ ہوتا ہے, کوارٹر فائنل, سیمی فائنل, دین فائنل. او بھائی سیمی فائنل تو کھیلو بھائی, وہ پھر فائنل کھلائیں گے, فائنل پہنچ چکے ہیں بھائی, تم سیمی فائنل کھیل سکتے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کو بولو کہ وہ قبروں سے اٹھ کر بھی میرا مقابلہ کریں, تو نہیں کر پائیں گے. مردے زندہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اگر یہ الزام لگاتا ہے تو شہید قرآن میں زندہ ہے, اٹھا کسی شہید کو, شہید زندہ ہے نا, رزق ملتا ہے. قرآن کہتے ہیں مردہ نہیں کہنا, آتے پیتے تمہیں شعور نہیں ہے, شعور نہیں ہے. ہاں یہی بات ہے نا, شعور نہیں ہے, وہ زندہ ہے, کھاتے ہیں پیتے ہیں. اگر ہے طاقت اٹھاؤ ان کو, واہ 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 واہ, اٹھا طاقت. انجینئر صاحب اسٹوڈنٹ ہے بھائی, یہ نوجوان ہے, یہ بھائی یہ مطلب یہ کہ جگمگاتا ہوا خون ہے بھائی, ہم کہتے بات کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کسی ایک سے تو آپ مناظرہ کر کے دکھا دیں, پھر شاید ہم بھی آپ کو مان جائے کہ آپ مرزا انجینئر ہیں, حق کی بات کرتے ہیں. یار نہ مناظرہ کر, سامنے بٹھا, تیری ضرورت یہ نہیں ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی, کہ تیرے پاس مہمان آیا, تو بلا, تو کہہ اسے بھائی تو چھوٹا بندہ ہے, تیرے ساتھ میں مناظرہ نہیں کر سکتا, تو آ ناشتہ کر. کہتا کہ ناشتہ پکتا ہے صبح ساروں کے لیے آتا ہے, کوئی بھی آ جائے, تو بلا اکیڈمی کے اندر, سامنے بٹھا, نہ سن کو ایکشن, نہ کر مناظرہ, بٹھا, کھانا کھلا, بات کر. مہمان آئے ہیں یار, مہمان دشمن کے گھر چلے جائے اس کا احترام ہوتا ہے. مہمان تو بھائی سے برکت ہے, تو برکت بھی نہیں حاصل کر رہا ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. ہاں بھائی جان کیا کہیں گے, ذرا مائک دے دیجیے ان کو. اب تو بہت سارے سوالات بھائی آپ پر, تو مطلب یہ کہ پلندہ چھوڑ دیا کہ سوالوں کا, خاموش ہو گئے آپ. بھائی نے ایک بات کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر میں نبی کے دور میں ہوتا تو میں بھی جنگیں لڑتا. میں یہاں پہ ایک مثال ایڈ کرنا چاہوں گا. ویسے خیر یہ تم کا عشق ہے, تم کا عشق ہے بالکل ایسے. یہ بات کا کہنا غلط نہیں ہے, نہیں یہ عشق ہے ان کا, میں آن کر رہا ہوں اس بات کو, سیکنڈ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا عشق ہے. باقی جہاں تک ان کی بات رہی مناظرہ کرنے کی, تو یہ کیا بات ہوئی جب ان سے ڈیل ڈن ہی نہیں ہوئی ہے. ایک بندہ میں انہوں نے کہا تھا میں نے آپ سے ملنا ہے, ٹھیک ہے, آپ سے میں نے ٹائم ہی نہیں مانگا, یا کوئی ہماری فائنل ڈسکشن نہیں ہوئی کہ میں آ رہا ہوں, آپ بن بلائے مہمان آ جائے, میں آپ سے کیوں ملوں.
ओ यार भाई और दूसरी बात, मेरी बात सुने, वो वीडियोस में अपना जो भी मौकफ दे रहा है ना, आप भी वीडियोस बनाए, उसका जवाब दे अवाम के सामने। मैं खेले वीडियो आप दीन का जो इन वीडियो के जरिए नहीं फैलाया जाता, भाई वो भी तो फैला रहा है ना, समझा के फैलाया जाता है। ये वो क्या दीन का इन फैला रहे वो नहीं फैला रहा। गालिबन ये कुछ कहना चाहते हैं। आपकी बात का जवाब मैं इस चीज में देता हूँ। आप कह रहे हो कि यार वक्त नहीं दे रहा, ये मुनाजरा नहीं कर रहा, आपके डील डन नहीं है, ये नहीं। आप मुझे कहते हो फजल भाई आप मेरे घर आओ, आपके पास 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, आप जब मर्जी आ जाओ, इतवार का दिन आ जाओ, मैं अवेलेबल होता हूँ। अगर किसी और दिन में आना है तो फिर बता के आओ, वरना इतवार का दिन तो ऐसा है कि मैं घर पे ही रहता हूँ, आप मुझे जब मर्जी आके मिल सकते हो। आपको 1 महीने का 2 महीने का टाइम दे रहे हो, वो अल्लाह के बंदे वो क़यामत तक तेरे टाइम दे रहा है। फिर बंदा इतवार वाले दिन 9 बजे से पहले पहुंचे, कुंडी गड़का रहा है, हजरत जी मुलाकात करने के लिए आया हूँ, आप कहाँ चुपके हैं यार? वो भाईजान आपकी बोलती बंद हो गई, आपकी बोलती बंद हो गई। ये बात नहीं, हजरत क़यामत तक टाइम है, स्टूडेंट है आपका वीसीओ वीडियो है, क़यामत तक टाइम है, हजरत क़यामत तक टाइम है, तो क़यामत से पहले मिले ना। 26 नवंबर भी गई, फिर अपनी सिक्योरिटी को फोन कर लेता है, आज वो भाई ने वीडियो की क्या डील डन हो गई, बंदा आता है ना, उसका जवाब दे। भाई क्यों वीडियो खेले, तुम सामने मैदान में हो। वो भी वीडियो यार, में ये कह ओ रहा है भाई, किसी के साथ मिल तो नहीं रहा। मैं मालूम ये कह रहे हैं कि ये भाई कुछ कहना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं जी मैं गोश्त बाग का धोबी हूँ जी, मेरी बख्शिश हो जाएगी, गोश्त बाग कब्र में आएंगे। नहीं, ये बात है, ये कादिर साहब, ये बात है, कादिर साहब ने की है इस बात नहीं कहा किताबों में मिलती है। बात ये गोश्त पाक के धोबी वाली बात है ना। बकाया कोकुम नूरानी साहब, बिल्कुल मैं मालूम चाहता हूँ नाज़रीन किराम, कोकुम नूरानी साहब का जरा क्लिप देखिए कि जिसमें वो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई मैं गोश्त पाक का धोबी हूँ, मेरे साथ ये मामला हुआ। क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थानवी साहब लिखते हैं हिफाजत यौमिया हिस्सा दोम, कहते हैं एक शख्स मर गया, फरिश्ते आए, सवाल किए मर रब्बु का, माँ दीनों का, मन नबीयों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, नबी कौन है, क्या कहता था? उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। थानवी साहब लिख रहे हैं जवाब देने वाले ने क्या कहा, मैं गौस पाक का ऊंची। थानवी साहब कहते हैं उसने सही जवाब दिया, पास हो गया। वो सवाल कर रहे हैं रब कौन, वो कहता गौस पाक का धोबी, गौसे आजम का धोबी। गौस पाक ने थानवी से भी लिखवाया, लिख गौसे आजम, लिख गौसे आजम का धोबी। कैसे सही जवाब? जवाब इस तरह सही कि उसने कह दिया जो गौसे आजम का रब है वो मेरा रब है, जो उनका दीन है वो मेरा दीन है, जो वो नबी के बारे में अकीदा उनका है वो मेरा है। तो थानवी साहब लिखते हैं वो पास हो गया, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन गई। तो उसने कहा गौसे आजम का धोबी, तो मैं कहूंगा इंशाअल्लाह मैं गौसे आजम का मुरीद, तो मेरा बेड़ा पार नहीं होगा। जी क्लिप आपने देखा, क्या कहेंगे आप? यार गौस पाक के धोबी वाली बात जो है ना, वो एक किताब से उठाया एक वाकया, वो वाकया कुछ यूं ही इसको रंग देने के गौस पाक के धोबी कब्र में आएगा। वो बंदा था, वो गौस पाक के कपड़े धोता, अब्दुल कादिर जिलानी नाम उनका ना, कपड़े धोया करता था। अब उसको इतना इल्म फहमी, वो अजमी था, आप अरबी थे, तो सारे मामला तब चलते थे। तब उसने डिस्कशन की, किसी ने पूछा कि एक बंदा ख्वाब देख रहा है, वो अपना ख्वाब बयान कर रहा है, उसने उस धोबी को ख्वाब में देखा कि कब्र में गया, उसने पूछा क्या क्या सवाल है, तो उसने कहा ये मैं यही जवाब दिया कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। वो अल्लाह के बंदे वो खुद कह रहे, वो तो ख्वाब बयान कर रहा है अपना कि मैंने ख्वाब देखा। अब ख्वाब में किसी की पकड़ है? आप कुछ भी ख्वाब देख सकते हो, सही बात, सही ख्वाब में तो पकड़ नहीं ना है। और वो किताब में लिखा है, किसी ने लिखा है, उलमा बयान करते हैं, वो चटपटी बात बनाने के लिए कहते हैं गौस पाक तो धोबी ने मैं बख्शिया गया। ना ना काका, ये बात नहीं, हम मानते ही नहीं है। कब्र में सवाल होंगे मन रब्बू का, मन दीनों का, ये सवाल होंगे, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, इस नबी पाक के बारे में जो जानते हो क्या कहते रहे हो, ये क्या कहते रहे हो, ये क्वेश्चन होंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा। तब अपने आप जवाब नहीं आएंगे, इधर हम कहेंगे अल्लाह है, इस्लाम है, ऐसे नहीं। तब जुबान बोलेगी, हाथ बोलेंगे, सही बात, ये जवाब होगा। भाईजान आपका नाम क्या? मेरा नाम अब्दुल हादी चीमा। अच्छा चीमा साहब डरे डरे बैठे हुए हैं, आप हैं भी चीमा, डरे डरे बैठे हुए हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं, आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं? झगड़ा असल में बहुत सारी इंटेलेक्चुअल बातें जो कि मेरे लिए भी काफ़ी सारी नई थी, मैंने आज सुनी है। लेकिन मेरा जो ज़ाती तौर पे मौक़िफ़ ये है कि जब कोई भी इंसान मुस्लिम उम्मत के लिए आलिम का दर्जा रखता है ना, जिसको हम आलिम कहते हैं, कोई भी एक शख्स भी वो खुद को आलिम नहीं कहते, खुद को आलिम नहीं कहते। मैंने बकायदा पॉडकास्ट किया, वो कहने मुझे जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, इल्मी शख्सियत जो बात अच्छी करता है ना वो दूसरे को नहीं, वो इल्मी शख्सियत तो है, जो बंदा जितना इल्म रखता है उतना इल्म का आदमी। देखिए चले आप आलिम ना कहें, आप आलिम ना कहें, आप ये कह लें कि आप
कोई भी शख्स जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मैंने अपनी उम्मत को संवारना है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे वो कोई भी शख्स ले ले, वो सुन्नियों में से कोई ले ले, वो देवबंदियों में से कोई ले ले, शियों में से, वहाबियों में से, या कोई नई जमात बना ले, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंजीनियर साहब को जब मैंने शुरू में फॉलो करना शुरू किया तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं उम्मत की यूनिफिकेशन करूंगा, मैं उम्मत को इकट्ठा करूंगा, मैं यूनिटी में ले यकजा करूंगा। ठीक है, मैं ये बापों वगैरह को निकाल, अब एक उनका मौक़िफ़ ये भी है, वो अपने बयान ले आओ ना कब्र से निकाल के बाहर, ये भी कहते हैं ऐसे ही बाबू को ले आओ ना। मतलब मैं तो इतनी रेसिस्ट या इतनी नहीं मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, मुनासिब ही नहीं है यार, बात बनती नहीं है। मैं इतनी रेसिस्ट या इतनी अदब तो होना चाहिए ना। एक्सट्रीम तुम सही निकालो, हम बाबे निकाल लेते हैं। एक्सट्रीम बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की ले लेते हैं ना, तो वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये शुरू में जब इन्होंने इनकी मैंने वीडियोस देखनी शुरू की तो इन्होंने कहा मैं तो शियों के पीछे नमाज हाथ छोड़ के भी पढ़ लेता हूँ, ये भी सुन्नत है, मैं हाथ ऊपर बांध के भी पढ़ लेता हूँ, ये भी सुन्नत है, मैं हाथ नीचे बांध के भी पढ़ लेता हूँ, ये भी सुन्नत है। मैंने तीनों बातें मान ली, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए, जिस तरह भी आप पढ़ें पढ़नी चाहिए। आप या अल्लाह मदद कहने के कायल हैं? मैं या अल्लाह मदद कहने के कायल हूँ, मैं इसके अलावा कुछ भी कहने के कायल। ठीक है, यानी इंजीनियर साहब ये तो आपके फॉलोवर हैं पक्का, यानी ये जितनी बातें भी हुई हैं, कादरी साहब ने भी की हैं, भाई ने भी की बात, नहीं कोई असर नहीं हुआ आप पे? नहीं, मैं उन्होंने दलाल के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन मैं लेकिन फिर भी या अल्लाह मदद बस खुशकिस्मती के साथ या जैसे भी आप कहें, मैं इंजीनियर साहब का फॉलोअर नहीं हूँ। मैंने उन्हें सुना है, लेकिन जो आप बातें कर रहे हैं वो हूबहू वही बातें जो इंजीनियर साहब बताते हैं। मेरा इंजीनियर साहब के साथ जो बेसिक इख्तिलाफ है वो ये है कि जब आप यूनिफिकेशन की बात करते हैं ना उम्मत की, तब आपको फिरका वारियत में घुसना पड़ता है, तब आपको लोगों से मिलना पड़ता है, तब आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। सही बात, ठीक है। अब लेकिन वो जवाब देते हैं? नहीं, जवाब वो सबको जवाब देते हैं। नहीं, जवाब ऐसे नहीं दिए जाते। आप एक कमरे में बैठे, ठीक है, मैं आपके साथ बैठा हूँ या मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, वैसी सी बात है, मैं जिस महफिल में बैठा हूँ वहाँ पे मुझे पसंद करने वाले लोग बैठे हों, ठीक है। आप एक कमरे में 20, 25, 30 जितने भी हजारों में लेके लोग बैठे हुए हैं, तो आप उस कमरे में एक बात करते हैं, वो आपका बयान रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाता है, फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत में अपलोड हो जाता है। मेरे जैसे एक कमज़ोर ईमान वाले बंदे के लिए इंजीनियर मिर्जा साहब हो या कोई भी मुफ्ती हो गली मोहल्ले का जिसके पास इतना इल्म नहीं है, उसकी भी अच्छी बात मेरे दिल पे असर करेगी। ठीक है। इंजीनियर मिर्जा साहब ने कोई अच्छी बात की है या किसी गली मोहल्ले के आम से मुफ्ती ने जिसके पास इतना इल्म नहीं है, उसने एक अच्छी बात की, वो मेरे दिल पे असर करेगी। उस दिल पे असर की हुई बात को लेकर आप उसे अपना मतलब कह लेंगे आलिम या फिर अपना लीडर नहीं मान सकते। सही है। कोई एक इंसान अगर अच्छा अगर एक इंसान है, उसने एक अच्छी बात की है, उस अच्छी बात की बिना के ऊपर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को नहीं जान सकते। ठीक, कि वो अंदर से कैसा है या वो टोटली दीन को कितना जानता है या उसका इस बारे में मौक़िफ़ क्या है और इस बारे में मौक़िफ़ क्या है। ठीक है। तो मेरा बेसिक जो उनके साथ इख्तिलाफ है ना, कि अगर देखें डॉक्टर इसरार अहमद साहब यूनिफिकेशन की बात करते थे, ठीक है, वो यूनिटी की बात करते थे, अल्लाह ताला उनको कब्र में करवट थे, ठीक है, और उसके बाद वो खिलाफत की बात करते थे। ठीक, मतलब आजकल जितनी तेज़ी के साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान के अंदर और इकोनॉमी का जो क्राइसिस चल रहा है, सारी चीज़ें, लेकिन ना हमारी जो मुसलमानों के बेसिकली जो तबाही की वजह है ना, वो बेसिकली ये है कि हम पुराने कवानीन में खो गए, पुरानी शरीयतों में खो गए, यानी दकियानूसी है। हाँ, हम पुरानी वही बाबों वाली और वही जो चीजें हमें शुरू से सुनाई जा रही है की बात कर रहे हैं यार, कहते हैं फॉलोवर ने इंजीनियर की बातें कर रहे हैं। शुरू से जो चीजें हैं ना, शुरू से उन्हीं के अंदर बाबों ने उम्मत के वसीयत और मुफाद में उम्मत को यकजा नहीं किया। देखिए, बाबों के खिलाफ तो मैं इसलिए हूँ कि मेरे अंदर थोड़ा सा खून वहाबियों वाला है मेरे घर की तरफ। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि बाबा साहब को क्या मिलता है, मैं एक बात छोटी सी, मैं माफी के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, सही है, ठीक है, आपका मुझे बात बता दें, अगर एक इंसान है वो फोत हो गया, मैयत आपने उसको दफना दिया, ठीक है, उसके सवाब या फिर उसकी अच्छे अमाल उहद पहाड़ के बराबर भी हों, पूरी दुनिया के बराबर भी हों, आपने उसको दफना दिया, ठीक है, आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में आप अत्तहियात में बैठते हैं, अत्तहियात में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप आले मोहम्मद के लिए दुआ करते हैं, आपने उन्हें बख्श दिया, फिर दरबार पे जाने का क्या तुक बनता, फिर दमाल डालने का क्या तुक बनता, फिर ढोल बजाने का क्या तुक बनता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आपका मौक़िफ़ है।
ये आप कादिर साहब अपने जवाब देने बिल्कुल तो मैं तो बतौर साहब जवाब नहीं दूंगा, आप स्टूडेंट आप जवाब दें। मतलब मैं वैलिड पॉइंट्स हैं इनके, वैलिड पॉइंट्स। मैं बिल्कुल फातिहा पढ़ने के हक में हूँ। मतलब अगर कोई भी अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, जज्बात के मर जाने पर भी फातिहा पढ़ते हैं? हाँ जी, जज्बात के मर जाने पर भी फातिहा पढ़ते हैं आप, या सिर्फ बाबों के मर जाने पर फातिहा पढ़ते हैं? मैंने ये जज्बात शुक्र भी करते होंगे ये तो। मैंने ये जज्बात पे मर जाने वाली बातें आपसे ही सुनी। आप मुझे तो लग रहा है आप बापों के मर जाने पर शुक्र अदा भी करते हो। नहीं मैं अल्लाह शुक्र है ये तो गया। नहीं अल्लाह माफ क्यों कादरी साहब, मुझे तो लग रहा है ये, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। नहीं, अच्छा मैं आप तमाम स्टूडेंट्स हैं, आप बेहतरीन बातें कर रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन हमको इस वक्त भारत से भी सुन रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तान भी हमको सुन रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की खिदमत में जब हम जहलुम अकेडमी हाजिर हुए तो उनकी खिदमत में हमने एक सवाल रखा कि आप कहते हैं बाबे तो कोई शय नहीं, लेकिन जैसे ही हम अकेडमी में हाजिर हुए ये करीब करीब कुर्सियां पड़ी हुई हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं। जब हम कुर्सियों में बैठे थे हमें इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि भाई कुर्सियों से उठ जाएं, यहाँ बाबों की जगह है, ये बूढ़े बाबे हैं, यहाँ बूढ़े बाबों को बिठाएंगे, क्योंकि रिजवान भाई आप भी हमारे साथ हैं, यहाँ बूढ़े बाबों को बिठाएंगे, ये बूढ़े बाबों की जगह है, आप नौजवान नीचे बैठ जाए। मैंने उनकी खिदमत में सवाल रखा कि जो बाबे यहाँ के हैं उनका तो इतना अदब और एहतराम कि उनको कुर्सियां दी जा रही हैं, और जो बाबे हैं जो उम्मत को इश्क करना सिखाते रहे, इश्क मुस्तफा, बिल्कुल, क्योंकि निस्बत तो वही है, निस्बत तो इश्क मुस्तफा है, जो उम्मत को सिखाते रहे, उनके लिए आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाबे से कोई शय नहीं। तो मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ इंजीनियर साहब कि वो बाबे इन बाबों से बेहतर होंगे। अच्छा अली भाई, जब मैं हाजिर हुआ हूँ ना यहाँ, जब मैं हाजिर हुआ हूँ तो हमें बताया गया इंतजामिया की जानिब से कि ये जो कुर्सियाँ लगी हुई है ना, जी जी, यहाँ बाबों को बिठाने, उनका अदब करो, क्योंकि बड़े बाबे हैं ना, बुजुर्ग हैं, उनका इज्जत करो, एहतराम करो, बाबों का अदब करो। तो यहाँ जब बैठा तो यहाँ अजीब जुमला सुनने को मिला, बाबे दिशाई कोई नहीं। जी जी। एक तरफ बाबों का अदब कराया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है बाबे दिशाई कोई नहीं। वो बाबे इन बाबों से बेहतर होंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी नजर? हाँ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस कुर्सी पे कोई एक बाबा भी नहीं है जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़वाया हो, ठीक है? अगर उस तरह का बाबा मेरे हथे चढ़ जाए तो फिर देखें उसके साथ हम क्या करते हैं, ठीक है? उसे तौबा करवाएंगे, मारेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपकी नजर में, उन्होंने कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया गया, ये आपके बुजुर्गों ने किया, यानी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये कहते कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, उस दौर में तो 90 लाख मुसलमान थे ही नहीं ना, 90 लाख आबादी थी। अगर 90 लाख आबादी होती तो हम आबादी में बहुत ज्यादा होते, उनका ये कहना है। क्लिप नाज़रीन कराम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन्होंने कलमा पढ़ा के हमारे बुजुर्गों को मुसलमान किया। तो बाकी बुजुर्ग हैं उनकी कोई कंट्रीब्यूशन बताएं ना, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास एक बात होगी कि इन्होंने कलमा पढ़ा के हमारे बुजुर्गों को मुसलमान किया। हम कहते हैं अगर ये इनकी फजीलत है तो वो तो हम माजी में जाके कोई वीडियो प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि आप अपने क्लेम में सच्चे हैं या नहीं है, लेकिन आज के दौर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने हज़ारों, चले एहतियातन कह लेते हैं सैकड़ों हिंदुओं को कलमा कैमरे में पढ़ाया जी। तो बरेलवी देवबंदी उन्हें सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मानते डॉक्टर जाकिर नाइक को, जिन्होंने इस मॉडर्न दौर में लोगों को मुसलमान किया? वो क्या कहेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अकीदे दुरुस्त नहीं है। हाँ, वो कहते हैं उसने कलमा जरूर पढ़ाया है लेकिन उसके अकीदे सही नहीं, इसलिए हम उसे बुजुर्ग नहीं मानते। बिल्कुल यही नजरिया हमारा इनके बुजुर्गों के बारे में कि कलमा पढ़ाने से कोई बुजुर्ग नहीं हो जाता, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है अल्लाह फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। अगर आपने किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी साबित करनी है ना तो आपने उसकी कोई कंट्रीब्यूशन दिखानी है। कलमा पढ़ाना तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती 90 लाख लोगों को मुसलमान कर, हाँ, तो वो डॉक्टर हुसैन, बादशाह हुसैन, जी जी जी, हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ तो यार काफिरों ने भी की है। हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ करने से कोई खुद बड़ा नहीं हो जाता। आपने जाकिर नाइक का भी वाला दिया ना, वो यजीद को रज़ियल्लाह कहते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती ने तो नहीं कहा। नहीं, फर्क तो देखे ना, नहीं फर्क आप तो, उनको उनसे तो ना फर्क पे अगर आप कहेंगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने तो बहुत बड़ा काम किया है जो उनकी तरफ मंसूब है। हम एक टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन चूंकि उनके मानने वाले इसे सही समझते हैं तो हमने तो उनकी बात ही माननी है ना जी। क्लिप आपने देखा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये बाबे वाकई कोई शय नहीं है, दलाल के साथ वो बात कर रहे थे क्योंकि इल्मी शख्सियत तो वो है। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, तो इसी तरह जाकिर नाइक ने भी बहुत सारे लोगों को कलमा पढ़ा दिया, उसको फिर सुल्तानुल हिंद कहें आप? ये भी कहा गया सुल्तानुल हिंद कहें, क्यों नहीं कहते आप? तो मैंने कहा कि भाई वो यजीद को रज़ियल्लाह कहता है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये नहीं कहा।
मुइनुद्दीन चिश्ती ने यही कहा कि शास्तु हुसैन बादशाह हुसैन बीनस्तु हुसैन दीने बनास्तु हुसैन सरदार लगा दस दस यजीद हक्का कबीरा ला इलाहा अस्तु हुसैन। तो फिर उन्होंने मेरी बात को और करते हुए ये कहा कि हम 1 टन हुस्न जन रखते हैं और उन्होंने इश्क का पैगाम फैलाया। यानी यहाँ तक तो मैं कामयाब हुआ। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? यार सर जी पहले ये बात है, वो कह रहे बाबों के बारे में कि बाबे कहाँ से आए, किस तरह से है। यार देखो नबी पाक को दुनिया से कितनी देर होगी? 1400 साल से शायद होगी। 1400 साल के बाद आज तक आपने नबी पाक को देखा है, सहाबी को देखा है, ताबई को देखा है? मुसलमान कैसे हुए? इल्म कैसे मिला, कैसे पहुंचा अब तक? क्वेश्चन जो वसीला ही है भाई, वसीले से आ रहा है ना इल्म। बड़े आलिम दीन आए, मुफ्ती आए, मुहद्दिस आए, मुहक्किक आए, चलते आ रहे हैं, ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये बड़े बाबों की बात कर रहे हैं, ये बाबे को तवीज़ आके वाले नहीं थे, ये बाबे इल्म पिलाते थे, आलिम बनाते थे। कलमा पढ़ाया उन्होंने भाई अपना। वो अल्लाह के बंदे कलमा अपना थोड़ी पढ़ाया, नबी पाक का कलमा पढ़ाया। ये तो इल्जाम लगा रहा है। वो बकायदा हवाला जात के साथ सबूत दिखा रहे हैं, प्रूफ्स के साथ बात कर रहे हैं। आपने बात की ना, उसने पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। जी हाँ। क्वेश्चन इज दैट अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, ये भी हाँ, ये भी अभी तो मुआविया रसूलुल्लाह भी निकाल लिया मादल्ला उन्होंने। अच्छा हाँ, वो भी निकाल के रखा, आप देखना क्लिप उनका, तो मैंने वो भी देखा है। तो ये 3 चीजें ऐड कर रहा है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसने इल्जाम लगाया किस पे? पीर मेरे सरकार, कि उनकी किताब में ये वाकया नॉट है। क्वेश्चन मैं करता हूँ, अब वो कह रहे हैं यार इनकी किताब में है, ये बात आ गई, पूरा फिरका रद्द, खत्म। इमाम बुखारी के बारे में क्या अकीदा है आपका? इमाम बुखारी वो तो उनको बहुत आशिक बाबा मानते हैं। इमाम बुखारी जब तो उनकी मेज पे पड़ी हुई किताब, हाँ, बुखारी शरीफ। वो कहते हैं कुरान के बाद अफजल किताब कौन सी है? हाँ, बुखारी। सही है, सही। ठीक है, हर फिका का यही अकीदा है। मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनका यानी 4 फिका जो मौजूद है, देवबंदी सुन्नी वाक़ई नबी, वो मानते हैं उन बात को। उसके बाद इमाम बुखारी को, यानी आप ये ऑन तो कर रहे हैं कि ये ऐसा कोई वाकया नहीं है किसी किताब में, मैं बताने लगा। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फिर ज़ाहिर फतवा क्यों दिया? वो मान गए ना, उन्होंने इकरार कर लिया हमारी किताबों में ये है। या फर्ज करते हैं, मान ली आपकी बात, हमारी किताबों में मौजूद है। ये तो दुई है ना, पहले आप कहते हैं कि है। मैं फर्ज कर ले, फर्ज मैथ में फर्ज करते हैं ना, दुई है ना भाई। अब मैं एक बात करना चाहूँ, जवाब आ जाए फिर बिस्मिल्लाह। इंजीनियर साहब से क्वेश्चन मेरा, ये बार मानते इमाम बुखारी की बात में चल रहा था कि इमाम बुखारी को मानते हैं, उनकी किताबों को मानते हैं, हदीस की फिका को सबसे इंपॉर्टेंट दी जाती है इमाम बुखारी के किताब की हदीस, ऐसी है। अब मैं बात करता हूँ, एक शख्स आपसे आके कह जाए कि यार कोई बंदा, आप बकरी का जो एक दूध है, आप और मैं अगर पी लें, माँ जाए भाई हो जाएंगे, आप बात मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा। ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इमाम बुखारी ने लिखी हो, अगर इमाम बुखारी ने ये बात लिखी हो कि बकरी का दूध 2 बंदे पी लें, वो माँ जाए भाई हो जाएंगे, आप और मैं, हमारी अक्ल तस्लीम ही नहीं करती कि हम उस बात को एग्री कर लें। वो अल्लाह के बंदे, ये बात इमाम बुखारी ने लिखी है, मैं हवाला देने को तैयार हूँ, इमाम बुखारी की किताब में नकल है बात, तो इमाम बुखारी की इस बात से रद्द कर रहा है कि इमाम बुखारी ये बात कर ही नहीं सकते, तो फिर बुखारी को क्यों मान रहा है? लगाया इल्जाम इमाम बुखारी पे। इंजीनियर साहब ने रद्द किया इस बात को? रद्द उन्होंने जवाब ही नहीं दिया यार। दूसरी बात पे आते हैं, कसीर इब्ने कसीर के अंदर इमाम इब्ने कसीर है, उन्होंने ये बात को नकल किया है कि अगर कोई शख्स चलता है, कई बातों से इख्तलाफ आ जाते हैं ना, अब उनकी बात में भी यही इख्तलाफ आ जाएगा। यही बात उन्होंने नकल किया है कि अगर माँ जाए भाई हो जाएंगे, तो फिर उन पे क्या इल्जाम लगाएगा? सियासत की किताब है भाई। अब क्या जवाब देगा उनके बारे में? इंजीनियर साहब क्वेश्चन है भाई, नौजवान है भाई, तो ये पढ़े लिखे नौजवान है, सवाल तो करेंगे, ये पूछेंगे, क्योंकि आपने इनको क्रिटिकल व्यूअर बना दिया भाई। ये आपने किया, ये नहीं थे, आपने सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आपने बातें ऐसे की, आपने सवाल ऐसे किए, और ये सवाल उठाते हैं नौजवान। अब जवाब दें, आप उस मसलन पे बैठे हुए, जवाब देना पड़ेगा आपको, आप जवाब दें। मैं तो बतौर सहाफ़ी न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। जी आप बताइए, आप क्या कहते हैं? क्योंकि सवाल मैं बाप तमाम की खिदमत में ये रखने वाला हूँ कि आप लोग या अली मदद कहने के कायल हैं? नहीं, ये बात या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, बात खत्म हो, बिल्कुल सही। अब्दुल्ला भाई, फजल भाई यार या अली मदद, यही इस चीज़ में मैं भी अग्री हूँ। या अल्लाह मदद सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात करती है, लेकिन अल्लाह पाक जिसे तौफीक दे, जिसे ताकत दे। वैसे आप कादरी हैं, हाँ, लेकिन कादरी हजरात जो हैं वो तो या अली मदद कहने के कायल हैं। मैं भी कहता हूँ यार, ये बात नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ बात करते हैं, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अल्लाह पाक जिसे तौफीक दे। ठीक है, नबी पाक ने जंग खैबर के अंदर एक दिन कबल फतह नहीं हो रही थी, नबी पाक ने रात को ऐलान किया था कि मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह का और मेरा प्यारा होगा, मैं अलम उसको दूंगा। हाँ, मैं अलम उसको दूंगा। ये बात ठीक है, यहाँ पे सभी अग्री करते हैं। बात की नबी पाक ये भी दुआ कर सकते थे कि अल्लाह काफिर सामने है, इनको निस्तो नाबूद कर दो, अल्लाह के जरिए मदद आ सकती। हाँ।
नबी पाक कह सकते तू सब लोग मिलके हमला कर रही वो, नबी पाक ने अली पाक का नाम क्यों लिया? काना अलम उसको दूंगा जो मेरा और अल्लाह का प्यारा है। नबी पाक बताते खुद मौला अली पाक को अलम दे रहे हैं कि ये जंग खैबर फतह करेगा। अब मैं इसमें मदद की बात नहीं कर रहा, नबी पाक ने हुक्म दिया, उन्होंने पूरा किया, जंग खैबर फतह हो गई। हजरत की मदद की बात नहीं आई, किसी को बुलाना पुकारना गलत बात है, गलत बात नहीं। आपको पैसे की जरूरत है, आप जाते अब्बा जी के पास, अब्बा जी मैंने फीस देनी, मुझे मदद करें, कुछ पैसे दे दें, या अब्बा जी मदद मना करो, पैसे खुद खर्चो। सही बात। बड़े भाई के पास जाते हो, लोगों से सवाल करते हो ना मुझे पैसे चाहिए किसी चीज के लिए, बड़ों से मांगते हो, चीज करते हो, तो छोड़ दो इस चीज को यार। एक और बात, अहले बैत सहाबा और नबी पाक के वसीले से मांगना ये जायज है, मतलब कि किसी से मांगना, देने वाली जात तो अल्लाह पाक ही है, दिए तो सबको अल्लाह पाक नहीं है, लेकिन हमें डायरेक्ट अल्लाह से भी मांगना चाहिए, लेकिन इनका वसीला दे के मांगना इसमें कोई बिल्कुल हर्ज नहीं है। अब रोटी सामने पड़ी हो ना मेरे, मैं या माई की पड़ा है, अब ठीक है मैं कहूँ यार ये माइक उठ के मेरे सामने आ जाए, कभी नहीं आएगा, मुझे इस हाथ का सहारा लेना पड़ेगा, मैं ये हाथ लगाऊंगा तो इस हाथ के वसीले से माइक मेरे करीब आएगा। अभी 5 है यानी पंजतन की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, 5 उंगलियां 14 जोड़। हाँ वाह 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 भाई वाह वाह वाह, सुभान 5 उंगलियां 14 जोड़, हमें जो भी मिल रहा है इसी पाक घराने के वसीले से ही मिल रहा है। सुभान अल्लाह, ठीक है, किसी वसीले से हमें मिल रहा है। अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, बुखारी की हदीस यार हजरत जी 2812। ये तो तमाम फिकों की, तमाम मसालिक के गलों की हड्डी बन चुकी है ये 2812। और इंजीनियर साहब बबांगे दोहल इस बात का इजहार भी करते हैं कि भाई अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, और उम्मा किराम की जानिब से बताया जाता है कि भाई ये हदीस मत पढ़ो, गो की लिखी है मत पढ़ो, भाई लिखे तो पढ़ेंगे ना भाई, उलमा कहते कफ़े लिसान, हाँ खामोशी इख्तियार कर। अब तो जब लिखे तो पढ़ेंगे, खामोशी इख्तियार क्यों की जाए? बिल्कुल बात ठीक है, जब लिखे तो पढ़ेंगे। अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नुम की तरफ दावत देगी या बुलाएगी, और वो जमात जनाबे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। तो हम भी कहते हैं अहदीस है, क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं, आप लोगों के मुंह का ख्याल रख। एक तरफ ना इंजीनियर साहब की भी बात है, वो अपने आप में ही मुनाफिक है। अच्छा कैसे? लिखी हुई बात को भी नहीं मान रहे भाई आप। ऑन स्क्रीन आता है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेते हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान कहते हैं ओ मामू ने ये गल की थी, हाँ मामू पार्टी। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्या बात, सहाबा के बारे में ऐसे बातें करते हैं यार, ये सहाबा का अकीदा आपके दिल में, आप तो अपने आप में ही मुनाफिक हो यार। और वो ये भी कहते हैं कि मौला अली कुनूत नाज़िला भी पढ़ते रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों कहते हो फिर उनको? खुल के सामने आओ, मुनाफिकत करो ना, पता लगे किस पार्टी का है, ठीक है सही को पता लगे। अब ये कहता है जी, अब नबी पाक ने फरमाया था मौला अली पाक को तुमसे ज्यादा इश्क करने वाले भी जहन्नम में जाएंगे, ज्यादा नफरत करने वाले भी जाएंगे। क्वेश्चन इज दैट, अब जंग जमल का वाकया आ जाता है, जंग सफीन का मामला, ये अमीर मुआविया के जो दौर का वाकया है, नबी पाक ने फरमाया था हर सहाबी के बारे में कि अल्लाह तुझे हक की राह पे चलाए, तुझे हक की राह पे चलाए। नबी मौला अली पाक के बारे में फरमाया था हक कली के साथ है। जी हाँ, जी हाँ। अब इस जंग के बारे में क्वेश्चन अगर होगा ना, तो खुदा की इज्जत की कसम, मेरा ये ईमान है, पहले दिन से लेकर, पहले वाक्य से लेकर, एक नुक्ता नजर से लेकर आखिरी वक्त तक जो शख्स हक पर था उसका नाम अली है। वाह वाह, ठीक है, हक पर मौला अली पाक है। अगर ये इल्जाम लगाता है, अम्मा आयशा के बारे में भी इल्जाम बनेगा, इब्ने अब्बास के बारे में इल्जाम बनेगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा निकल आएंगे कि किसके बारे में क्या अकीदा है। अम्मा आयशा को वापस भेज दिया मौला अली पाक ने, ऊंटनी की टांगे काट दी, वाकई बहुत आ जाएंगे आगे। लेकिन नबी पाक की हदीस में बयान है कि मेरा पुत्र हसन दो मेरे मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। अगर नबी पाक के ये भी अल्फाज है ना, आप हवाला दे रहे हो हदीस का कि यार ये हमारे रीढ़ का डी मसला बन गई भाई, मसला बन गई है, लेकिन ये भी तो बढ़ाओ ना कि दो मुसलमान ग्रोह, ये तो नहीं कहा काफिर और मुसलमान, मुसलमान गिरोह, मुसलमान मुनाफिक तो नहीं इस्तेमाल, हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही, दो मुसलमान ग्रोह के दरमियान सुलह करवाएगा। हाँ हाँ वो बात हुई, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन मुसलमानों में भी तो ज़ाहिर खुराफात आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, यार उनकी इज्तिहादी गलती थी, हम उस चीज़ को मानते हैं, खता इज्तिहादी कहते हैं आप। और 2812 को कहाँ तक देखते हैं? बस ये बात यहीं पर खत्म रहने तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बिल्कुल सही है।
آپ میں چونکہ آخر پہ آپ کا بس ووٹ لوں گا, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ انجینئر صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں انجینئر صاحب کے حوالے سے؟ چونکہ آپ کو تو خاموش کرا دیا ہمارے فضل بھائی نے, پہلے آپ نے تو رب کا فضل ہے, وہ تو بات نہیں کرنے دے رہے آپ لوگوں کو. یہ ظاہر ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ یا علی مدد کہنے کے قائل ہیں. پہلے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا, میں کہتا رہا ہوں ٹھیک ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے ہو گیا نہیں, مجھے پہلے کی بتا رہا ہوں. اچھا پہلے کی بات, مجھے نالج نہیں تھا, لیکن اب میرے خیال سے اس طرح کہنا مناسب نہیں ہے. یا اللہ مدد. ٹھیک ہے انجینئر صاحب, یہ ظاہر ہے کہ ان میں توحید کا پروانہ جو ہے وہ بھی اس وقت چمک رہا ہے اور وہ بھی اجاگر ہو رہا ہے. یہ میں اگر یہاں بیٹھے کہوں کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے, تو یہ ظاہر ہے کہ مجھے مار دوڑنے کو پھریں گے. میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ان کا اپنا عشق ہے. آپ کیا کہیں گے بھائی یا علی مدد کے حوالے سے؟ میں یا علی مدد کو قائل نہیں رہتا. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے صحیح ہے. انجینئر صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں نے جو پہلے بات کی تھی وہی دوبارہ کروں گا کہ رسپانسبلٹی بہت بڑی ہوتی ہے حکومت کو یکجا کرنے کی. کوئی بھی ہے, انجینئر صاحب پہلے بھی لوگ آئے, ابھی انجینئر صاحب ہیں, انجینئر صاحب 5 سال 10 سال اور رہیں گے, اس کے بعد اور لوگ آئیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا تا قیامت. لیکن جو بھی یہ رسپانسبلٹی لیتا ہے اس کو اپنی رسپانسبلٹی کے اوپر پورا اترنا چاہیے. صحیح. اس کو اگر اس نے یونیفیکیشن کی بات کی ہے اسے بات چیت کرنی چاہیے. صحیح. اسے اگلے کے مسئلے سننے چاہیے, اطمینان کے ساتھ سننا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اگر میں ایز اے بھابی اگر شیعوں کو گالی دیتا ہوں یا سنیوں کو گالی دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ان کی سائڈ آف اسٹوری نہ سنی ہو کہ ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے, انہوں نے کیا سیکھا ہے, ان کا اس میں قصور ہے بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے, فضل بھائی میں معذرت چاہ رہا ہوں, شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے, شیعہ کافر, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یار کسی حد تک اگر بات دیکھی جائے نا, میں کافر تو نہیں کہوں گا, کسی کو ڈکلیئر نہیں کرتا, اللہ پاک جانتا ہے اس کے دل میں کیا چاہ رہا ہے. لیکن ہاں جہاں پہ وہ صحابہ پاک کی گستاخی کریں گے نا, میرا غیرت ایمانی کا بارہ نہیں کرے گی. جو نبی پاک کے یاروں کو, نبی پاک کے صحابہ کو برا بلا کرے یا گالی دے یا دیگر ایمانی غلط لگے, یعنی وہ کافر کہیں گے نا پھر آپ؟ کافر کہہ سکتے. ہاں کیسے آپ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کے ظاہر ماننے والے ہیں, پیر نصیر الدین نصیر, وہی تو ہے نا, وہی تو ہیں. ان کے دور میں کیا شیعہ حضرات صحابہ کو گالی نہیں دیتے؟ معذرت دیتے تھے نا, لیکن ان کا تو باقاعدہ اس بات پہ کلیم ہے اور ان کا یہ فتویٰ ہے کہ شیعہ کو گالی مت دو, شیعہ کو کافر مت دو. گالی تو کافر کو بھی نہیں دینی چاہیے, لیکن وہ کہہ رہے کافر مت کو شیعہ کو. اکثر طبقہ ایسا ہے جو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھائیں, تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. آپ نے اصولی جو اختلاف ہے اس پر آپ نے گفتگو قرآن مجید کی آیات کے تحت کی ہے. اس پر فرماتے ہیں, ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع امت کے اکابر نے شیعہ کو کافر نہیں کہا ہے, لہذا شیعہ کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے کہ آپ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں, دیکھا میں نے کلپ دیکھا. شیعہ کو کافر مت کہو. یار کافر مت, ان کا ایک اپنا opinion. تو آپ یہ کہہ دیں نا اسکرین پہ شیعہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کہنا چاہیے. دو شخص صحابہ یعنی آپ پیر نصیر الدین نصیر کو انکار کر رہے ہیں؟ نہیں انکار نہیں کر رہے, اوپینین میرا اپنا ہو سکتا ہے نا. کیوں بھائی, آپ ان کو مان رہے ہیں؟ مان رہا ہوں. نہیں, جب وہ آپ کے بابا ہے تو آپ ان کو تسلیم کریں. دیکھو احمد بھائی, مجھے لگتا ہے کہ احمد بھائی آپ کا چینل بہت اچھا ہے, آپ اچھی بات کرتے ہو, مجھے آپ پسند ہو. از ناٹ دیٹ کہ آپ کی پسند میری پسند ہو, آپ کی رائے میری رائے ہو, آپ کی اوپینین لگ ہے, میری اوپینین جب آپ نے اپنی رسی کسی بزرگ کے ہاتھ میں تھما دی, پکڑا دی, پھر جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرتے جاؤ. یار ہر بات تم نے مانگی, قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو نا. یہی تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. یار انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں, پھر کیوں تفرقوں میں پڑے ہوئے آپ, کیوں بابوں کی بات کر رہے ہیں؟ بات اس بات پہ ہم نے کہا تفرقوں میں نہ پڑھو. ہاں تو آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں نا, آپ بابوں کی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, آپ بابوں کی مثالیں دے رہے ہیں. ابھی آپ پیر نصیر الدین نصیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بھائی ان کی بات ہو رہا ہے, میں ان کی بات نہیں مانتا, یہ تو بات نہیں ہے نا. عبداللہ ہادی نے بات کی کہ یونٹی کرو, آپس میں ان کا یہ مقصد تھا کہ یونٹی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آتی اسی بات پہ, آپ نے میرا نام سنا جی حافظ فضل قادری, پتہ لگتا ہے سنی ہے, اس نے بات کی کسی اور فرقے کی, پتہ لگتا ہے دیوبندی ہے, وہ پتہ لگتا ہے شیعہ ہے, یعنی پتہ لگتا ہے پہچان رکھتے ہیں. یہ اس مکتبہ فکر سے تعلق یعنی اہل حدیث بھی ہے, شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے. ہمارے میں آپ کو کویسچن یہ بنتا ہے کہ حضرت جی اگر آپ ایک اوپینین دے رہے ہیں, ایک رائے دے ہیں, تو الہ الا اللہ کرو نا, میرا الگ فرقہ ہے, نام رکھا ہے اسٹوڈنٹ, نہیں میری فرقہ بنا کے سامنے بھی نہیں آتے ہو. فرقے والا سوال تو آخر میں ہے. سمپل سی مثال اس کی دے دیتا ہوں.
मैं कहता हूँ कि फरवरी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, 8 तारीख को इलेक्शन है, मेरे ख्याल में बेहतरीन वोट इमरान खान का बनना। अब कल को इमरान खान की कोई वीडियो लीक हो जाए, ठीक है, इमरान खान की कोई वीडियो लीक हो जाए तो आप कहेंगे हाँ भाई तेरा लीडर तो आया, मैंने उसको उसकी लीक वीडियो की वजह से वोट तो नहीं था ना देना। आप इस चीज को भी तो समझे। सही सही। अगर वो किसी पीर को, किसी पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की बात हो रही है या किसी पीर की बात हो रही है, अगर वो उस पीर की इज्जत करता है तो जरूरी नहीं वो उस पीर की सारी बातें मान लेगा। ठीक है, इसीलिए मैं जाती तौर लेकिन अहले सुन्नत के नजदीक यही है कि जब पीर की इज्जत है, पीर को अपनी रस्सी थमा दी तो पीर गलत भी कहे। अल्लाह के बंदे गलत, माँ बाप कुरान पाक में ये अहले सुन्नत में भाई, ये बात नहीं है, वो आपके नजदीक हो गया, अहले सुन्नत में नहीं है। मैं बताता हूँ शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? माँ बाप की नाफरमानी। जी हाँ, ठीक है, उसकी हिसाब किताब इन्होंने नॉन स्टॉप दोज़ख में हाँ। जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा। कुरान कहता है उनकी ये फरमाबरदारी तब तक करनी है जब तक वो शरीयत के दायरे के अंदर आपको हुक्म दे। कुरान कहता है जो शख्स किसी की दिलाजारी करेगा वो बगैर दिलाजारी की, नबी पाक की हदीस है, माशा को जो बताया था, जो किसी का दिल खुश करेगा वो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। आप खुश हो गए थे, इसका उलट भी देखो। ठीक है, सिद्दीक अकबर की जब बात आई ना तो तब उन्होंने कहा इसको उलट देखो, जो दिलाजारी करेगा वो भी बगैर हिसाब के दोज़ख में। हजरत जी क्वेश्चन इज दैट कि अगर माँ बाप आपके साथ इज्जत करते हैं, हम नाफरमानी करें, दिलाजारी करें, हम जहन्नम में। माँ बाप भी अगर किसी के बच्चे हैं ना, अगर वो किसी की दिलाजारी करे, औलाद की कर दी, ठीक है, माँ बाप के बारे में क्या क्वेश्चन लगाओगे? यही तो है, अगर माँ बाप हमारी दिलाजारी करते हैं किसी वजह से, हो सकती है इंसान है, खता कर सकता है, हो जाए, फिर क्या ऑब्जेक्शन लगाओगे? कहोगे दोज़ख वाले? नहीं, सवारी पैदा नहीं होते। देखिए हमारे वालिदैन है ना, सही बात है ना, वालिदैन है। ओपिनियन इज ओपिनियन, हर शख्स अपनी राय रखता है, उनका एक ओपिनियन अपनी राय है। अब इमाम बुखारी की मैंने पहले बात की, उनका ओपिनियन था कि बकरी के दूध के 2 बंदे मां जाए भाई हो जाएंगे, लेकिन हम बुखारी को मानते हैं, इस बात का रद्द करते हैं। ठीक, ये हमारी राय। सही, ठीक है। मैं आखिरी सवाल आप चारों की खिदमत में रख रहा हूँ, इसके बाद ज़ाहिर प्रोग्राम हम समेटेंगे। बेहतरीन प्रोग्राम आप ज़ाहिर के अपनी आरा से लोगों को भी आगाह कर रहे हैं। मुझे बताइए, फिरकों के इंजीनियर साहब खिलाफ है, वो कहते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, इस बात को तो आप मानते हैं, इंजीनियर साहब ये कहते हैं, मगर नौजवान धड़ाधड़ उनको फॉलो कर रहे हैं और ये भी देखने में आ रहा है कि एक नया फिरका बन रहा है जिसका नाम है इल्मी किताबी। क्या कहेंगे इस बात से? आप बता रहे सबसे पहले। जी मैं बता देता हूँ, ये ना शुरू में हम जब मैं दीन की तरफ शुरू में आना शुरू हुआ तो मेरे शुरू में कब आए थे आप? शुरू में मतलब जब घर वालों ने मदरसे भेजना शुरू किया अभी आया। आप पैदा ही दीनी घराने में भाई, ये तो जुमला ही गलत होगा ना, शुरू में दीन की तरफ आना ये होता ही नहीं है। पैदा दीनी घराने में, पैदा दीनी घराने में हुआ, इसमें कुछ तो यानी जब हो गए तो हम दीन में हैं। अब हम गलत जाए अच्छा जाए बुरे, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मैं अब जैसे जैसे मेरे दीनी इल्म में इजाफा होता है, मुझे नए नए फिरकों का पता चलता रहा है। जैसे पहले आप यही समझ लें कि पहले एक मोहल्ले के अंदर 3 घर थे ना, एक गांव था, उसको आबाद किया, वहाँ पे 3 घर थे, ठीक है, उन तीनों के बड़ों के नाम थे, वो 3 कास्ट बन गए, ठीक है, 3 कौमें बन गई, ठीक है। वैसे ही ये फिरकों वाला भी मुझे जो समझ आती है ना, वैसे ही ये फिरकों वाला मामला भी है, ठीक है। कई कादरी हैं, उन्होंने ब्राउन पगड़ी पहनते हैं, कोई हरी पहनता है, कोई किस रंग की पहनता है, पता नहीं ये इन्होंने तो अब तो हर रंग की पहनते हैं, अभी तो ये मैरून पहने हैं। मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, अब तो ये हर रंग की पहनते हैं, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन कादरी हर पहले से सब थी बाबा जानी वो यार, वो मैं एक कादरी स्पेसिफिक एरिया के बाबा जानी का नहीं है, उनकी बातों से बहुत इख्तिलाफात है। अच्छा, उनका ये एरिया नहीं है, अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले सुन्नत ये मुनाफिकत कर रहे हैं बाबा जानी मुनाफिकत कर रहे हैं, कादरी होते हुए अजीब अजीब बात, कोई ओपिनियन अपना, कभी बाबों के खिलाफ, कभी बाबों के हक में, कभी बाबा जानी के हवाले से बात करते हैं। अभी तो माशाल्लाह यार, अब एक बाबा जानी के 7 दफा ये पढ़ो तो पेट्रोल में बरकत हो जाएगी, हम इस चीज को नहीं ना मानते यार। तो ये केले छीलने के तरीके आ गए, तो ये लेकिन छील के भी रुख काबे की तरफ करना है, ये जरूर है, ये जरूरी है। ठीक है, ये बातें तो नहीं ना, नीचे वाली पॉकेट में अगर बाथरूम में पीली चप्पल पहन, हां, नीचे वाली पॉकेट में अगर पैसे डाले वो आराम हो जाएंगे, मीटर के साथ तवीज लगा लो, ये ऐसे बाबे तो नहीं मानते ना। ये चीजों की समझ से भी बाहर है नहीं, ये रोजगार बनाया जिन्होंने, जिनमें पहचानना पड़ता है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, अब नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे ना, लेकिन ये तो बताए ना जो भी बन रहा है फिरका, ये आखिरी सवाल है हमारा,
ये फिरका बन रहे, इल्मी किताबें बन रहे हैं। फिरका बन रहा है, वो खुद आपको सामने लगता है कि बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, इसमें कोई अभी भी शक है नहीं? तो आप एक बंदा अपनी ओपिनियन अलग दे रहा है, अपनी राय अलग रख रहा है, अपने बंदे इकट्ठे कर रहा है, ये मेरा बंदा है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, और नाम रख लो स्टूडेंट, सही है, ठीक है, ठीक है। इल्मी किताबी बात करते हो, रखो फिरका बन रहे, बन रहे। क्या नुकसानात देख रहे हैं आने वाले वक्त में फिर ये मुनाजरा अगर ये फिरका बन जाता? ये फिर मुनाजरा भी नहीं ना करता। बात ये है, अब मैं हूँ, मैं क्रिकेट अच्छी खेलता हूँ, मैं कहूँ मैं क्रिकेट उदो खेली हूँ, विराट कोहली मेरे नाल खेलेगा, उस तो अलावा मैं नहीं खेलनी, वो बड़ा बड़ा प्लेयर है, जब मैं तब खेलूँ या बाबर आजम मेरे साथ खेलेगा, बोलना कि बंदे वो क्लास के प्लेयर है, मेरी औकात क्या है, मैं डोमेस्टिक ही नहीं खेला अभी, सही बात, मैंने फर्स्ट क्लास ही नहीं खेली, मैं पहले अपने लेवल के बंदों से खेलूँ, पता लगे कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ, मैं खुद ब खुद सामने आऊंगा। सही बात, तुम खेलो तो सही, सही बात, तुम तो खेल ही नहीं रहे, तुम तो मैदान भी मेरा, विकेट भी मेरी, खेलूंगा मैं। आपके पास कोई था तो वो 16 घंटे ड्राइव करके जिलम पहुंचे, जी हाँ, कुछ उनके इल्म था तो वो पहुंचे। बिल्कुल ये बात है कि बंदा कराची से आया, आप उसी दिन हमजा अली अब्बासी से मुलाकात कर सकते हैं, तारक मसूद से नहीं कर सकते, पता भी है 2 दिन पहले का आया है। अच्छा ये ऑब्जेक्शन लगाता है जी मंगल वाले दिन आए थे, तो मैं मंगल वाले दिन जरा मसरूफ होता हूँ, तो हनीफ का किस दिन आया, वो तो सारी दुनिया ने देखा है, अथवा फिर कहता 9 बजे से पहले आना, फिर तो 9 बजे से पहले आ गया, अच्छा वो भी कराची से चल के आया, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की कुली के ना भाई हमारे साथ, उनका शुक्रिया है, ऐड करना चाहता हूँ। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने एक शादी की हुई है, उसके वाले से उनका बयान आया, इधर भी एक मेरे भाई बैठे हुए हैं, आप में से किसी की शादी हुई है? उन्होंने निकाह किया हुआ है, लेकिन घर वालों को नहीं पता, इसको कहते हैं छुपा के शादी की हुई है, इसके बाद में छुप के शादी नहीं होती भाई, जब ये मैं सीधी सी बात कहूंगा, सीधी सी बात, अगर बंदा निकाह सीधी सी बात, ये मसला है भाई, फॉर एग्जांपल लड़का और लड़की साथ उनके मौलवी है जो निकाह करवाने वाला है, एक तो अगर बात है, आपने अच्छा हुआ मौलवी कह दिया, लेकिन लड़का लड़की सिर्फ होते तो फिर कुछ और होता, वली है तो निकाह होता, अमर होते। अगर लड़का और लड़की को वली नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो वो निकाह इस तरह करना वो जायज। ठीक है, कादरी साहब बताइए, मैं मसौद साहब की क्या बात करूं? सबसे पहले मर्द के बारे में बात करता हूं या औरत के आगे। बारे में। कुरान पाक ने कहा है अपनी पसंद की औरतों से शादी करो, 2 3 3 4 से। हाँ, इज दैट क्लियर कि हम अपनी पसंद हो किसी की पसंद हो, किसी का इस पे कोई नहीं। फिर उसके बाद लड़का और लड़की बालिग हो जाए शादी कर सकते, हमारी राय है। अब 18 साल से कम है ना, तो हमारे माँ बाप हम पे ये राय नहीं, इजाजत है, हमारी राय नहीं, इजाजत है, करते हैं वालिदैन पे ना। उसके बाद जब बालिग हो जाते हैं ना, हमें इजाजत है, आपको पसंद है कोई लड़की, आप शादी कर लो, लड़की को लड़का पसंद है वो शादी कर ले, शादी मर्ज है। बंदा जिना करे, जनाकारी करे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। बंदा निकाह करे, सुन्नत निकाह करे, कारी मौजूद हो, गवाह मौजूद हो, फिर ऑब्जेक्शन, फिर ऑब्जेक्शन। हजरत जी ज़िना पूरे के निकाह, हमने ज़िना को आसान, लड़की का ज़िना को आसान कर दिया है, निकाह को मुश्किल कर दिया है। हमें तो पता नहीं है लड़की ने शादी कर ली है, निकाह जिस लड़की से ज़िना हो रहा है, घर वालों को पता है कि मेरी बेटी से ज़िना हो रहा है, उसे बता गई है, घर वालों को बता के जाती है। हाँ बता के आई है ना, बता के आई कि मैं फलां को मिलने जा रही हूँ, फलां मुलाकात। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और लड़के और लड़की में दीनी और दुनियावी सारी खूबियां हो, माशाल्लाह, ये कौन से लड़का लड़की हैं जी, सारी खूबियां मौजूद हैं, मगर लड़की और लड़की घर वाले ना माने तो वो कोई स्टेप ले सकते हैं? कोई स्टेप नहीं ले सकते जी। जूतियां मारनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस किस्म के स्टेप लेते हैं। इस्लाम में वली की इजाज़त के बगैर लड़की अपना निकाह नहीं कर सकती, निकाह बातिल है। सुन्नत इब्न माजा में पूरा बाब मौजूद है, नबी इस्लाम ने फरमाया निकाह बातिल है वली की इजाज़त के बगैर। जो लड़की है वो अपने वली यानी अपना बाप या बड़ा भाई, अगर बाप ना हो तो उसकी इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर सकती। स्टेप कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप आप लेंगे भी ना मेरे भाई, लग पता जाएगा बाद में। कभी आपने लव मैरिज कामयाब होते हुए देखी है? आपको टीवी पे जितने ये खामन ने बीवी को कत्ल कर दिया, बीवी ने खामन को कत्ल कर दिया, ये सारी लव मैरिजेस होती हैं। अरेंज मैरिजेस की कामयाबी के चांसेस 90% हैं और लव मैरिज की नाकामी के चांसेस 90% है। ठीक है, प्रैक्टिकली हमारे सामने है, क्योंकि ये लव जो है ना वो सिर्फ एक एंगल से चीजों को देखने को, यानी सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का नाम तो नहीं, ये तो एक दुम है उस रिश्ते की, इस पूरा हाथी इसके पीछे लगा हुआ है। शादी के बाद एक पंडोरा बॉक्स खुल जाता है, कई और रिश्तों के मसले, फिर वो खुशी गमी के मसले और कितने इशू जुड़े हुए हैं। वो लड़का लड़की देख रहे होते हैं, बस वो जी पसंद आ गया, वो पसंद भी थोड़ी खत्म हो जाएगी 4 दिन, लग पता जाएगा। आप सब दो मैंने आपसे सवाल किया, फिर आखिर में ये बात, वही बात, प्रोग्राम को इख्तिताम करें, काफी वक्त हो गया, लेकिन यही बात है। अजीज साहब मशवरा है आपके लिए, अगर मैच खेलना है मैदान में आके खेलें, किसी से मुकाबला करें, बगैर प्लेयर के मैदान में मैच नहीं होता।
ٹھیک ہے. اگر مخالف ٹیم آئے گی تو میچ ہوگا. آپ کہیں گے جب میں وہی بات ہے نا کسی بڑے پلیئر سے کھیلنا ہے, پہلے میچ تو کھیلے نا, پتہ لگے بندہ کھلاڑی ہے, پھر ہم بھی بتائیں گے کہ کون حق پہ ہے کون سچ پہ. پہلے کوالیفائنگ فیصلہ عوام کرے گی, ہم نہیں کریں گے, یہ سچائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو نا کوئی چھوٹا آ جائے تو ہم یہ کہیں گے یہ ہمارے فرقے کی ہار نہیں کسی اور کی ہار ہے. حضرت جی جب ایک سنی عالم دین, ایک دیوبندی عالم دین یا ایک اہل حدیث عالم دین جا کے مناظرہ کرے گا نا, اگر وہ ہار جاتا ہے تو مطلب پتہ لگ جائے گا بندہ ڈڈ ہے, اسی ہار مان لی. ہر بندہ کہے کہ سنی ہار گیا دیوبندی ہار گیا, عوام خود ہی رائے کر لے گی نا کون ہار ہے کون نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات اختتام پہ. آپ سب دوستوں کا شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا کیونکہ ایگزام بھی چل رہے ہیں. آپ کا ایک مرتبہ پھر انتہائی مشکور ہوں. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے, چونکہ آج ہم GC یونیورسٹی فیصل آباد میں موجود تھے, ڈپارٹمنٹ میس کمیونیکیشن, یہیں سے میں بھی فارغ التحصیل ہوں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہر کسی نہ بھولے گا تاکہ ہماری آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹس محظوظ ہو سکیں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ. ناصر احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.